Welcome back, class. This is the second video on the jet transform. So here I'm again discussing one more example on the jet transform, and after that I will discuss the inverse jet transform. So find the jet transform of the function sine अल्फा के वेयर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि हमें के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है. तो इसका मतलब हमें यहाँ पर वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म यूज करना है. के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन अल्फा के जेट टू द पावर माइनस के. नाउ वी नो द e raised to the power I theta, e raised to the power I theta equals to cos theta plus I sin theta, and if here we place the negative sign, that means e raised to the power minus I theta, that will be cos theta minus I sin theta. So here we will use these two formulas. If we add e raised to the power I theta plus e raised to the power minus I theta, then we get 2 cos theta, and if we subtract e raised to the power I theta minus plus minus plus minus, so e raised to the power plus minus I theta cos theta plus minus I sin theta. So if we add e raised to the power I theta plus e raised to the power minus I theta, then we will get 2 cos theta, and if we subtract e raised to the power I theta minus e raised to the power minus I theta is equal to 2I sin theta. So sin theta will be e raised to the power I theta minus e raised to the power minus I theta upon 2. That means sin alpha k will be replaced by e raised to the power I alpha k minus e raised to the power minus I alpha k upon 2I. By using the linearity property of the sigma summation, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इन दोनों को. e की पावर आई अल्फा के साथ z की पावर माइनस के अलग आ जाएगा, और e की पावर माइनस आई अल्फा के और z की पावर माइनस के ये अलग आ जाएगा. फिर यहाँ पे दोनों का पावर हम देख रहे हैं k है, तो k e रेज़ पावर आई अल्फा और z टू द पावर माइनस 1 पर होल पावर k आ जाएगी. ऐसे ही यहाँ पर e रेज़ पावर माइनस आई अल्फा और z टू द पावर माइनस 1 पर k पावर आ जाएगी. अब इनको ज्योमेट्रिक सीरीज से k वैरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, k को 0 करेंगे 1 आएगा, k को 1 करेंगे ये एक्सप्रेशन आएगा इटसेल्फ, और k को अगर 2 करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, k को 3 करेंगे तो क्यूब आएगा. तो इसमें कॉमन रेशो हो जाएगा e रेज़ पावर आई अल्फा z टू द पावर माइनस 1. तो 1 अपॉन 1 माइनस r, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं. सिमिलरली 1 माइनस e टू द पावर माइनस आई अल्फा z टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1. This is again a binomial. This is binomial expansion of this. This is 1 minus x power 1, and this is 1 minus x power minus 1. So after simplifying, we will get the 1 upon 2i z upon z minus e to the power I alpha minus z upon z minus e to the power minus I alpha, and by taking LCM we will find this expression. So this is the jet transformation sin alpha k is this. Now if we talk about the inverse jet transform,
as we have computed here, the Z transform of sin alpha k is 1 upon 2i z e to the power I alpha minus e to the power minus I alpha upon z square minus z e to the power I alpha plus e to the power minus I alpha plus 1. Z transform of this function is this, and Z inverse of this function. Z inverse of this function will be sin alpha k. Similar to the Laplace transform, as you have already studied the Laplace transform and the inverse Laplace transform. The inverse Z transform, the similar concept as the inverse Laplace transform. So now onwards we will study the inverse Z transform, or we can say the various methods to find the inverse Z transform. So there are some methods to find the inverse Z transform. So first one, the convolution method. Analogous to the Laplace transform, हमने देखा है कि Laplace transform बेसिकली ऐसे फंक्शंस के लिए डिफाइन होता है जो फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं 0 से इन्फिनिटी में। अगर हम Z ट्रांसफॉर्म की बात करें तो वो डिस्क्रीट सेंस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही एक फॉर्म है। तो जो कन्वोल्यूशन थ्योरम आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होता है, बिल्कुल उसके एनालोगस कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा Z ट्रांसफॉर्म में बनता है। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो L इनवर्स एफ पी जी पी इज इक्वल टू आता था 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। तो ये बिल्कुल एनालोगसली कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया है फॉर Z ट्रांसफॉर्म। Z inverse Z transform of fz gz is equal to sigma g m varies from 0 to k fm function of m gk minus m, where small f is the inverse Z transform of this fz and small g function is the inverse Z transform of this gz. So let us have a look on one example of convolution theorem to find the inverse Z transform. So we have to find the inverse Z transform of Z square, Z minus A, Z minus B. So we write two functions as fz, capital Fz, Z upon Z minus A, and capital Gz is Z upon Z minus B. As in the last video or last study, we have seen that Z transform of a raised to the power k हमारा आया था Z upon Z minus A, और Z transform of B power k क्या हो जाएगा? Z upon Z minus B. So Z inverse of Z upon Z minus A will be a raised to the power k, and Z inverse of Z upon Z minus B is B raised to the power k. So small f function is a raised to the power k, and small g function is b raised to the power k. So when we have to find the inverse Z transform of fz dz, so we will then use the formula sigma m varies from 0 to k fm g k minus m. So fm a raised to the power n, this one, gk minus m,
b raised to the power k minus m and this summation is varies from m to k। तो समेशन m पर है तो जो b की पावर k है वो समेशन से बाहर आ जाएगा, सिग्मा से बाहर आ जाएगा, ये बनेगा a अपॉन b पावर m। तो ये gp हो जाएगा। इस gp का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं और gp का सम जब कैलकुलेट हो जाएगा तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट की हमारी आ जाएगी a रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस b रेज़ टू द पावर k प्लस 1 अपॉन a माइनस b। दिस इज द कन्वोल्यूशन मेथड टू फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। सेकेंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। long division, in case of long division method, suppose we consider the first example, fz is equal to tan z upon z square minus 3z plus 2। so first of all take the highest power as common। z square को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 3z टू द पावर माइनस 1, यहाँ पर बचेगा 2z टू द पावर माइनस 2। अगर आप जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ऊपर जो जेड है उससे एक जेड स्क्वायर कॉमन लिया और आपने जेड को कैंसिल किया तो एक जेड बचा, उसको ऊपर लिखेंगे जेड टू द पावर माइनस 1 की फॉर्म में। नाउ tan जेड टू द पावर इनवर्स को हमें डिवाइड करना है 1 माइनस 3 जेड इनवर्स प्लस 2 जेड टू द पावर माइनस 2 से। तो सबसे पहला एम हमारा ये होगा कि tan जेड इनवर्स को कैसे हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये 1 है तो यहाँ पर कोसेंट आना चाहिए tan जेड इनवर्स, कोसेंट का पार्ट आना चाहिए tan जेड इनवर्स, क्योंकि इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा tan जेड इनवर्स। बाकी ये एक्सप्रेशंस बन जाएंगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 30 जेड टू द पावर माइनस 2 माइनस 20 जेड टू द पावर माइनस 3। अगेन इस एक्सप्रेशन से अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो फर्स्ट टर्म 1 है तो 30 जेड टू द पावर माइनस 2 कोसेंट का पार्ट होगा। इस नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर बना है 70 जेड टू द पावर माइनस 3। 70 जेड टू द पावर माइनस 3 बनाने के लिए यहाँ पर 70 जेड टू द पावर माइनस 3 यहाँ पर आएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन लॉन्ग डिवीजन है, ये डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होगा। अगर ये डिवीजन स्टॉप नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं बिकॉज इस फंक्शन से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये रिजल्ट आगे चलता चला जाएगा। दैट मीन्स हमें इस फंक्शन से इस फंक्शन को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमें आगे प्लस डॉट 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 मिलता चला जाएगा। तो हम इस डिवीजन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि लास्ट जब हमने देखा है कि जो जेड ट्रांसफॉर्म जब हम किसी फंक्शन का करते हैं तो उसमें जेड की पावर जो माइनस के है, जेड टू द पावर माइनस के, उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो एफ के होता है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला की फॉर्म है जेड ट्रांसफॉर्म, किसी फंक्शन एफ के का जेड ट्रांसफॉर्म अगर हमें करना है तो फॉर्मूला होगा उसका के वेरीज 0 टू इन्फिनिटी एफ के जेड टू द पावर माइनस के। तो हमें एफ के ही कैलकुलेट करना है। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बताने का मीनिंग यहाँ पर है कि एफ के हम बताएं, एफ के बताने के लिए हमें जेड टू द पावर माइनस के का कॉफिशिएंट बताएं। तो ये के की वैल्यू 0 तो ये f0, ये f1, जेड माइनस 1 होता है, f2 जेड माइनस 2 होता है। तो f0 हियर 0 क्योंकि यहाँ पर केवल कांस्टेंट टर्म नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है। f1 10 है, f2 30 है, f3 70 है। इस रूल को अगर हमने देखा तो ये रूल बनेगा 10, ये रूल बनेगा 10 2 टू द पावर k माइनस 1। अगर k 0 लें तो 0 आएगा, k अगर 1 लें तो 10 आएगा, k अगर 2 लें तो 30 आएगा, k अगर 3 लें तो 70 आएगा। तो दैट मीन्स एफ के, वो एफ के जेड टू द पावर माइनस के का जो कॉफिशिएंट है एफ के, वही हमारा फंक्शन होगा इनवर्स जेड फंक्शन। अगर हमें जेड इनवर्स कैलकुलेट करना है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है, तो इस फंक्शन का
जो फंक्शन हमें गिवन है इस एग्जांपल में, इस फंक्शन का z इनवर्स, इस फंक्शन का z इनवर्स होगा fk इज इक्वल टू tan 2 to the power k minus 1. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पावर सीरीज मेथड. मेथड्स में एक मेथड हमारा मेंशन था पावर सीरीज मेथड. तो पावर सीरीज मेथड में हमने क्या करना है, फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 4z माइनस ए, दिस वन, फॉर द रेंज हमें गिवन होगी mod z greater than mod a और mod z less than mod a. Since as some student have studied the Lorentz series in the first year, this expansion is analogous to the Lorentz series. Since we have mod z is greater than mod a, so take z as common. 4z upon z माइनस ए में से 4z upon z माइनस ए में से हम क्या करेंगे, केवल ये जो हमारा z फंक्शन है 4z upon z माइनस ए, इस फंक्शन से हम तो z हमने डेनोमिनेटर से कॉमन लिया, और अगर हमने z कॉमन लिया यहाँ पर, तब ये हमारा बना एक्सप्रेशन 4z अपॉन z एंड 1 माइनस ए अपॉन z रेज़ टू द पावर माइनस 1. इसको हम न्यूमरेटर में ले लेंगे. इस एक्सप्रेशन को हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं. ये जो एक्सप्रेशन है हमारा यहाँ पे, सो z से z कैंसिल हो जाएगा. 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1, इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1, क्योंकि a अपॉन जेड का मोड लेस देन 1 है, क्योंकि हमने z कॉमन लिया. z कॉमन लेने से ये a अपॉन जेड बनेगा. यहाँ पे a अपॉन जेड अगर ये बनेगा तो a अपॉन जेड का मोड 1 से लेस देन होगा, क्योंकि मोड z ग्रेटर देन मोड a है, तो a अपॉन जेड यहाँ से लेस देन 1 होगा. ये सिग्मा हमारा हो जाएगा. अगर हम इस सिग्मा में देखें तो सिग्मा का जो कॉफिशिएंट है, उस सिग्मा का कॉफिशिएंट हमारा बनेगा, सिग्मा में जो z टू द पावर माइनस k का कॉफिशिएंट है वो बनेगा 4 a raised to the power k, this one 4 a raised to the power k z to the power minus k. तो ये जो गिवन फंक्शन था एफ जेड हमारा 4z अपॉन z माइनस ए, इस फंक्शन को हमने इस रीजन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया एज ए लॉरेंट्ज सीरीज, और वहां पर देखा हमने z की पावर माइनस k का जो कॉफिशिएंट है, वो कॉफिशिएंट हमारा 4 a raised to the power k है. So 4 a raised to the power k is the fk. 4 a raised to the power k is that sequence whose z transform is 4z upon z minus a. Therefore, we can write z inverse of 4z upon z minus a is equal to sequence, curly bracket means sequence 4 a raised to the power k. The remaining part I will discuss in the next video. Thank you.